Okay, guys, let's look at another question. This question is on Venn diagram. So, question says 190 students have to choose at least one elective and at most two electives. So, it simply means that exactly 3 will be 0, right? So, we have given information related to exactly 1 and exactly 2 only, right? So, let's make a Venn diagram of this as well to understand and plugging the values whatever given to us from a list of 3 electives. So, E1, E2 and E3. We know exactly 3 is 0. It is found that the number of students choosing E1 is half the number of students choosing E2. So, E1 is half of E2 and 1/3 of the E3. So, if I consider E3 as let's say 6x ले लेते हैं, ठीक है, 6x and E1 will be half. E1 is half of E2. अच्छा 1/3 है, so that is 2x and this is 4x. ठीक है. Why did I choose 6x? You can see वो 1/2 भी करना था और 1/3 भी था. So 1/2 और 1/3 दोनों चल रहा था. So that's why I took a multiple of 6. So इतना हमारा सॉर्ट हो चुका है. उसके बाद moreover the number of students choosing 2 electives is 50. So 2 electives is 50, मतलब exactly 2 is 50. So suppose A, B, C. So I can say A plus B plus C is 50. ठीक है. उसके बाद इनको दे देते हैं नाम. X यहाँ यूज कर लिया है मैंने, तो PQR ले लेते हैं. PQR. So exactly 2 अगर 50 है तो exactly 1 जो होने वाला है वो 140 हो जाएगा कि ये तो क्लियरली हमें पता चलता है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो 190 स्टूडेंट्स है वो हमने डिवाइड किए गए हैं. तो exactly 1 plus exactly 2 is 190, राइट? तो exactly 1 140 हो गया और exactly 2 50 हो गया. ठीक है. After that, can we find out the value of x? Yes, we can, because there is a concept of Venn diagram which says exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 is basically the sum of these 7 regions. You can see 7 है, 1 2 3 4 5 6 7. So exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 is basically the sum of these 7 regions, but exactly 1 plus twice of exactly 2 plus thrice of exactly 3, but since exactly 3 is 0, so I will consider till twice of exactly 2, that is equal to this whole region plus this whole and this whole. So 2x plus 4x plus 6x, which is 12x. ठीक है. Now exactly 1 हमें पता है 140 है. exactly 2 हमें पता है 50 है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, that is 20, because this is 240, so 12x is 240, x is 20, so this is 40 and this is 80, this is 120. So I got this much as of now from the given information. Now question says which of the following cannot be obtained from the given information? Find. करिए. Number of students choosing exactly one elective. Yes, we have already found out that which is 140. तो ये तो मिल सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा. Number of students choosing E1, वो भी डिकोड कर लिया है. Number of students choosing E3, that is already decoded. Okay. Number of students choosing both E1 and E2. Both E1 and E2 means A. तो A की वैल्यू तो नहीं मिलने वाली है. So definitely we cannot answer this. But let's check क्या E भी आंसर हो सकता था. देखिए, number of students choosing either E1 or E2 but not E3. तो हमें चाहिए P plus A plus Q. हमें E3 नहीं चाहिए. तो क्या करेंगे हम? 190 में से E3 को माइनस कर देंगे, 120 को. So we will get P plus A plus Q. So that's why we can say E can be found out, but D cannot be obtained from the given information. So that's why answer is option number D. अब आते हैं next question पर. Next question says, in addition to the given information, which of the following information is necessary and sufficient
to compute the number of students choosing only E1, only E2 and only E3. चलो let's begin. पहला है number of students choosing both E1 and E2. अगर मुझे both E1 and E2 मिलता है, मतलब A मिलता है, तो मेरे को ना तो B पता ना C पता, बट अगर A मिलता है तो B प्लस C तो मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, राइट? सो B प्लस C मिल जाएगा, R मिल जाएगा, E3 तो मिल जाएगा, मतलब ओनली E3 तो मिल जाएगा, बट ना तो ओनली E1 मिलने वाला ना ही ओनली E2. सो दैट्स व्हाई आई कैन से ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने वो चाहता है कि ओनली E1, ओनली E2 और ओनली E3 तीनों मिले. अगर ओनली E3 पूछा होता तो डेफिनेटली मिल जाता. नेक्स्ट, number of students choosing only E1 and the number of students choosing both E2 and E3. अगर ये गिवन है, देखिए E1 तो यहां पे ये रहा, E1 गिवन है, चलिए E1 गिवन है, अच्छी बात है. और क्या गिवन है? E2 and E3, राइट, E2 and E3, E2 and E3, E2 and E3. सो दैट मीन्स C गिवन है. ओके, सो C गिवन है, हमें उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? देखिए, अगर C गिवन होगा तो मुझे A प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, और A प्लस बी से मुझे P मिल जाता, बट P तो ऑलरेडी गिवन है. A प्लस बी से मेरे को P निकालने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, P तो ऑलरेडी गिवन है. नेक्स्ट इज, क्या मैं R फाइंड कर सकता हूं? देखो, P मुझे मिल गया, A प्लस बी मुझे मिल गया, R कैसे फाइंड किया जाए? यार R अलोन तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे B की इंफॉर्मेशन तो कुछ है ही नहीं. अगर मुझे B फाइंड करना है, मतलब पहले मुझे B मिलना चाहिए, तभी मुझे R मिलेगा, अगर ध्यान से समझ पा रहे हो. क्योंकि देखो, C से A प्लस बी मिल जाएगा आपको, ये वाला, राइट? और A प्लस बी मिला तो आपको P मिल जाएगा, बिकॉज टोटल इज 40. बट द प्रॉब्लम इज, R फाइंड करने के लिए मेरे पास C है, बट मुझे B भी पता होना चाहिए, और B के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो E3 मुझे नहीं मिल पाएगा, ओनली E3. सो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ओनली E2 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E2 एंड E3. इसको देखते हैं. तो अगर E2 मतलब ये मिलता है और E2 E3 ये मिलता है, इससे क्या होगा देखते हैं. तो आपको Q मिल चुका है, आपको C मिल चुका है, ऑलरेडी गिवन है. जैसे आपको C मिला, आपको A प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है? C मिला तो आपको A प्लस बी मिल जाएगा, फाइन, A प्लस बी मिला. और जैसे A प्लस बी मिला, आपको P मिल जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, आपको Q पता है, आपको C पता है, और आपको टोटल E2 भी पता है, तो आपको A भी मिलेगा. क्योंकि क्या करोगे आप, जैसे मान लीजिए Q की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू 20 है, तो 80 में से उनको माइनस करके आपको A मिल जाएगा, और जैसे ही A मिलेगा आपको B मिलेगा, और B मिलेगा तो आपको R भी मिल जाएगा. तो सारी वैल्यूज आपको फाइंड, मतलब आप इजीली फाइंड कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई वी कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर C. So it's a very good question related to Venn diagram, where the question setter is checking your Venn diagram concepts instead of asking to find out the exact values. तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पे कॉन्सेप्ट की नॉलेज ज्यादा चेक हो रही है रेदर देन फाइंडिंग आउट द वैल्यूज, बिकॉज वैल्यूज इजीली लोग फाइंड कर लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट को वेरिएबल के फॉर्मेट में कनेक्ट करना इस दैट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर यू लर्न वेन डायग्राम, तो उसको दोनों तरीके से समझो, कि अगर पूरा वेरिएबल्स में डील करना है तो भी आप कंफर्टेबल हो, और अगर वैल्यूज के साथ डील करना है तो ऑब्वियसली फिर तो कंफर्टेबल लोग रहते ही रहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेट पर आते हैं. नेक्स्ट सेट सेज द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स, you can see the graph, sector wise percentage contributes to the GDP of 9 nations A to I, and these nations are Brazil, China, France, Germany, India, Japan, Russia, the UK, the USA, but not necessarily in the same order. That means nation A can be of any 9 countries. Same goes for nation B, same goes for nation C. But there is a distribution in the form of 3 sectors, that is agriculture, services and industry. That means if I talk about nation A,
सो नेशन ए में अगर जीडीपी आपको कुछ पता होगी उसकी, लेट्स से 10 हम मान लेते हैं जीडीपी, तो एग्रीकल्चर में उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो 17% है जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है. सो 17% ऑफ 10. सेम गोज फॉर सर्विसेज, 53% ऑफ 10 एंड इंडस्ट्री इज 30% ऑफ 10. ठीक है, तो यहां से एक रफ आइडिया लग गया है कि डेटा को कैसे समझना था. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज द जीडीपी ऑफ द 9 नेशंस आर गिवन टू अस एंड दिस इज इन डॉलर, और ऑब्वियसली इसकी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है. हम सिर्फ नंबर्स के रिस्पेक्ट में भी डील कर सकते हैं कि जीडीपी इसकी 2 है, इसकी 10 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, 2, 3, 17. तो जो भी करेंसी होगी आई विल इग्नोर दैट कि वो डॉलर में रुपीज में मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई विल फोकस ओनली ऑन द नंबर्स. नाउ सो बेसिकली देर आर एक सेकेंड, देर आर 9 नेशंस A, B, C, D, E, F, G, H. Now I will try to fit these nations with these 9 countries. Let's begin with the first case, which is the China has the highest agriculture sector valued at $1. That means you can say 1, followed by USA and India. तो चाइना का हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए, चाइना है 10. अब दैट इज 1. उसने मेंशन किया है कि जो 1 है मतलब द वैल्यू 1 रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर, और चाइना का टोटल जीडीपी है 10. सो 1 10 का कितना परसेंटेज होगा? 10%. सो वी हैव टू लुक एट फ्रॉम दिस ग्राफ कि किसका एग्रीकल्चर 10% है. यू कैन सी नेशन एफ. सो नेशन एफ is basically China. Okay, for next part is respectively by USA and then India. So that means China का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 1 है, उसके बाद USA का है, उसके बाद इंडिया का है. So that means we can say कि जो USA का एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी होगा और इंडिया का वो डेफिनेटली 1 से कम ही होगा. उसको हम बाद में देखते हैं. नेक्स्ट, in terms of percentage contribution to the respective nations GDP by their service sectors, the UK and France are respectively the first and second. So सर्विस में किसका परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है? आप देख सकते हो सर्विस में है, आई कैन सी नेशन डी एंड देन फॉलोड बाय नेशन एच. राइट, सो नेशन डी एंड नेशन एच. सो नेशन डी इज यूके एंड नेशन एच इज फ्रांस. अच्छा, एक और नेशन था, आई भी था, टोटल 9 थे ना. 9 है, ठीक है. तो ये तो यूज कर लिया है हमने. नेक्स्ट, नेशन ए, नेशन बी एंड नेशन जी हैव द सेम जीडीपी. तो सेम जीडीपी वाले आई कैन सी ब्राजील है, इंडिया है एंड रशिया है. सो ए बी जी इन तीनों में से किसी को बिलोंग करते होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. सो ए बी जी हमें मिल चुका है. राइट, अब वो ए बी जी हम फॉलो फिट मतलब अभी कर सकते हैं. अभी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ फिट करने का. चलिए 5th पे आते हैं. द जीडीपी ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर इज लोअर देन द जीडीपी ऑफ रशियाज इंडस्ट्री सेक्टर, हाउएवर इट इज लार्जर देन ब्राजील. सो रशिया का इंडस्ट्री सेक्टर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय इंडिया, फॉलोड बाय ब्राजील. और आपको पता है टोटल जीडीपी तीनों का सेम है, तो हमें यह देखना होगा किसका इंडस्ट्री वाला परसेंटेज ज्यादा है फ्रॉम द ग्राफ, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है, ओके. तो चलिए देखते हैं यहां पे. तो किसका परसेंटेज ज्यादा है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री है ये वाला. राइट, हमें चेक करना था किस किस के बीच में, ए बी एंड जी में. सो ए बी एंड जी में हमें चेक करना है, तो मैं मार्क कर देता हूं पहले ए बी एंड जी. सो इंडस्ट्री वाला किस में सबसे ज्यादा है? मुझे बी में सबसे ज्यादा दिखता है, फॉलोड बाय ए एंड फॉलोड बाय जी. सो बी ए जी. दैट मीन्स बी बिलोंग्स टू रशिया, ए बिलोंग्स टू इंडिया एंड जी वाला है ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस 4th and 5th स्टेटमेंट वी गॉट दी नेशन ऑफ ए बी एंड जी. ठीक है, तो अभी तक हमें 6 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और कुछ बचा जो हमने यूज नहीं किया. ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया.
ये वाला यूज कर लिया, ये वाला अभी तक यूज नहीं किया है. लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस थिंग एज वेल. So India, we already know India is nation A. So India is nation A. Now this is in terms of agriculture. तो agriculture India A का कितना है 17%. So 17% of 2 because India is also 2. So that means you can say India का contribution मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो 0.34 हो जाएगा 17% ऑफ 2, राइट. एंड चाइना का भी ऑलरेडी नो 1 है, यहां पे लिखा हुआ है. तो जो यूएसए का होगा वो डेफिनेटली 0.34 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा. अब यूएसए कहाँ आ सकता है? देखो मेरे पास 3 ही कंट्रीज बची हैं वैसे तो, सी, ई एंड आई. तो उन्हीं में से देख लेते हैं कि यूएसए किस में फिट होने वाला है. तो चलिए देखते हैं, सी में बात करते हैं. सी में हमें किसकी बात करनी है? एग्रीकल्चर. 3% ऑफ सी मतलब हमें यूएसए के लिए देखना था ना. तो 3% ऑफ 17 इज 5.1. सो डेफिनेटली सी में आ सकता है वो, क्योंकि इसके बीच में लाई करेगा. नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट नेशन जो देखने वाले ई. ई इज 5%. सो 5% ऑफ 17, 5% ऑफ 17 इज 0.85. सो अगेन डेफिनेटली इसमें लाई करेगा. सो सी और ई तो वैलिड है. आई के लिए देखते हैं. आई इज 1% एंड 1% इज ऑफ 17. देखो 1% है ना एग्रीकल्चर. सो 1% इज ऑफ 17 इज 0.17. सो डेफिनेटली इस रेंज में लाई नहीं करेगा. यूएसए का जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 1 और 0.34 के बीच में होना चाहिए. सो दैट मीन्स वी कैन से जो यूएसए है वो सी या ई में से कोई भी कंट्री हो सकती है. सो वी आर नॉट गेटिंग अ यूनिक नेशन फॉर यूएसए, बट वी कैन अश्योर वन थिंग कि आई तो पक्का नहीं होगा यूएसए को रिप्रेजेंट करने वाला नेशन. नेक्स्ट और क्या बचा है हमारे पास? हमने जर्मनी को यूज नहीं किया एंड जापान को यूज नहीं किया. और जर्मनी एंड जापान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नॉट गिवन टू अस. तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन डिकोड कर पाए हैं. चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं. पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ मेनी नेशंस कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड? आई कैन सी 6. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट? तो किसको रूल नहीं कर सकते? रशिया इज नेशन जी. यस, या वी कैन रूल आउट दिस. ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन है. जापान इज नेशन ई. Japan can be in nation E. We cannot rule out that, right? So that's why the answer is option number B. अब C को भी चेक कर लीजिए. US is nation I. देखो US कभी nation I नहीं होगा, so we can rule out that. India is nation B. नहीं है, India A है, so we can also rule out option number D. China is nation C. Again, China F है, so we can also rule out option number E. बट ऑप्शन नंबर बी को हम रूल आउट नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी का. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हेन कंसिडर्ड इन एडिशन टू द गिवन इंफॉर्मेशन डज नॉट अलाउ अस टू कंप्लीटली आइडेंटिफाई द 9 नेशंस इन द ग्राफ? ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम 9 नेशंस की वैल्यू बता सकते हैं, मतलब 9 नेशंस किस कंट्री को बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इफ वी कैन एबल टू फाइंड आउट दैट, सो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा. और अगर हम सारे कंट्रीज को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा. सो मेक श्योर यू रीड क्वेश्चन केयरफुली, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो नॉट वाला पार्ट होता है ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट करता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑप्शन. बोथ जापान एंड जर्मनी इंडस्ट्री जीडीपी आर मोर देन $1. सो 1 पे ही बात करते हैं सिर्फ. किस किस की बात हो रही थी? सॉरी, जापान एंड जर्मनी 1-1, दोनों का 1-1 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी. तो जर्मनी क्या सी हो सकता है? देखते हैं जर्मनी क्या सी हो सकता है. हमारी किसकी इंडस्ट्री था यार, मैं भूल गया, सॉरी. अच्छा, इंडस्ट्री ही था वो बेसिकली. ओके, हाँ ये रहा इंडस्ट्री.
सो क्या जर्मनी सी हो सकता है? 25% ऑफ 4 इज 1, बट मुझे मोर देन 1 चाहिए, सो जर्मनी सी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट नेशन। सी के बाद आता है ई। ई में 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 20% ऑफ 4 इज 0.8, क्योंकि इंडस्ट्री में ई का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो नेशन ई में इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 20% है सिर्फ। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज मुझे मोर देन 1 चाहिए। अब मेरे पास क्या बचा? आई। आई में 30%, सो 30% ऑफ 4 इज 1.2। सो आई कैन से जो नेशन आई होगा वो डेफिनेटली जर्मनी को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। सो आई कैन असाइन जर्मनी टू दिस नेशन। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। अब जापान के लिए बात करते हैं। जापान का भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, एंड वी आर लेफ्ट विथ सी एंड ई। चलिए सी से बात करते हैं। देखो सी 25% एंड जापान का जीडीपी है 5, सो 25% ऑफ 5 इज 1.25, which is valid. But if I talk about E, 20% of 5 is 1, but we have to look for more than 1. So this is also not possible. E वाला possible नहीं होगा, but C वाला definitely possible है। So ये जापान हो गया और ये यूएसए हो जाएगा। So that means we are able to find out we are able to determine all the nations. So that's why we can say A cannot be the answer, because उसने बोला है कि कौन सी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करने के बाद भी हम नेशंस को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाए। तो ए से तो कर पा रहे हैं, ये फेल हो गया। बी पर आते हैं। जर्मनी इंडस्ट्री जीडीपी इज यूएस 1.2। सो 1.2 चेक करना है मुझे अब की बार। ठीक है, चलिए 1.2 देखिए कहां पे मिलेगा, इसको रब कर देते हैं। सो 1.2 इज बेसिकली 4 का 1.2 होता है 30%। सो 30% किस में आ रहा है? 30% क्या चाहिए मेरे को, एक बार वो भी देख लेता हूं। इंडस्ट्री। सो 30% इंडस्ट्री आई कैन सी इज प्रेजेंट इन नेशन आई। सो नेशन आई इज डेफिनेटली फ्रॉम जर्मनी according to option number B. But what about Japan and the USA? Is there any information related to Japan and USA? No, there is only information related to Germany. So we are not able to determine the position or the nations of Japan and USA. So that's why the right answer is option number B. So काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, स्पेशली लास्ट वाला। तो इसके अलावा आप तीनों ऑप्शंस को चेक कर लेना, आपका आंसर डिटरमाइन हो जाएगा। So that's why we can rule out those options, but B से नहीं होगा, इसलिए B is the right answer. Okay, next question पे चलते हैं। Next question is read the information given below and answer the 3 associated questions. So there is a table given to us, and it says the revenue of 4 companies P to S were as follows, and जो revenue है वो lakh rupees में है, so that means 150 lakh या 125 lakh for these respective years. So we have understood the table. Now let's go to the questions. Which of the given company has seen the highest year-on-year growth in percentage in any single year during this 5-year period? ठीक है, तो year-on-year हमें चेक करना होगा। तो let's talk about P. तो P में if I look at this, so this is 25 increment of 25 with respect to 150. So this is roughly 16.66%, 1 by 6. You can say 1 by 6 also. This is also 25 increment with respect to 175. So this is 1 by 7. So obviously we have to look for highest. So this will be eliminated. Next, this is 50 with respect to 200. That is 1 by 4, which is 25%. And no increment. So from this we can see the highest percentage increment as of now is 25% from P, company P, right? Year on year की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो 15 का इंक्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू 125। ऑब्वियसली वो 25% से कम है, हमें 25% से ज्यादा चाहिए। यहां पे चेक करते हैं 40 विद रिस्पेक्ट टू 140। सो 40 विद रिस्पेक्ट टू 140 इज 2 by 7 and 2 by 7 is 28.56%.
सो यहां पे Q रेस को बीट कर चुका है, Q इज लीडिंग बिकॉज ऑफ 28.56%, ठीक है। हेयर 30 with respect to 180 which is 1/6, again no point of taking. Here also 10 with respect to 210, no point of considering this. Here 10 with respect to 150, again no point of considering this. ये हम directly कर सकते हैं without calculating the actual values. We have to be very good with the comparing the values. अगर अच्छे हो तो पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला वाला तो ये है 20 with respect to 160, so that is 1/8 which is 12.5. 20 with respect to 180 which is 1/9, that is 11.11. यहाँ पे 40 with respect to 200, that is 20%. So again the Q is leading, so no point of taking any value from R. What about this? I can see direct 20% increment. 20 with respect to 120, no point because कितना इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ 16.66 का। 30 with respect to 140, since we have already considered 40 with respect to 140, वो ज्यादा होने वाला है, तो 30 with respect to 140 तो कंसिडर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड 10 with respect to 170 भी कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई कैन से द Q इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इट वॉज डिस्कवर्ड, one second, let me rub this thing first. Okay, it was discovered later that one of the companies misreported its revenue of one of the years. Okay, if the misreported revenue is replaced by the correct revenue, the revenues of the company over the 5-year period will be in arithmetic progression. तो कौन सी वो कंपनी हो सकती है जिसने वो रेवेन्यू को मिस रिपोर्ट किया है? सो वी हैव टू मेक दीज नंबर्स इन एपी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, सो 25 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी 25 है। सो इफ आई कंसीडर दिस 250 की जगह 225, क्या ये एपी बनेगा? बिकॉज 225 क्यों लिया है? बिकॉज 25 का कॉमन डिफरेंस मेंटेन करना था। This is also 25. So I can say P will be one of that company जिसका revenues AP में form हो सकता है if I change only one value. Next, this is 15, this is 40, this is 30, this is 10. I cannot change value and make these numbers in AP. So Q को हम ignore कर सकते हैं। R को देखते हैं। R में देखिए यहाँ 40 का जंप है, यहाँ 20 का है, यहाँ भी 20 का है, बट यहाँ 10 का है, कुछ नहीं बन रहा। राइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये कर सकते हैं चेंज। सो एस इज ऑल्सो दैट कंट्रीज, वन ऑफ दैट कंट्री जिसका रेवेन्यू एपी में फॉर्म हो सकता है इफ आई चेंज ओनली वन वैल्यू। Right, so we can say answer will be P and S. P and S, P and S कहाँ है ये रहा? P। इन दोनों में से कोई भी कंट्री हो सकती है। Next, during the period from 2014 to 15, the revenue increased by 25% for the 3 of the companies and by the 50% for the remaining company. अब मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी का है जिसका 25% से इंक्रीज हुआ है और किसका 50% से इंक्रीज हुआ है। But the total increase in revenue for all the 4 companies put together is rupees 125 lakhs. Okay, ठीक है, 125 lakhs। तो हम लैख को इग्नोर कर देते हैं, 125 में डील कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा लैख में ही है ना। तो ऐसा कर देते हैं, 125 का मुझे इंक्रीमेंट निकालना है, इसको इग्नोर मार दो। तो 125 का मेरे को चेंज निकालना है। अब कौन सी कंट्री, कौन सा कंपनी जिसका 25% से ग्रोथ होने वाला है, कौन सा कंपनी जिसका 50% से ग्रोथ होने वाला है, उसको हिट एंड ट्रायल करने से बेटर है मैं इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं कि जो भी आपके पास कंपनीज है उनका 25% भी कैलकुलेट कर लीजिए, उनका 50% के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर लीजिए और फिर कॉम्बिनेशन बनाइए कि किस कॉम्बिनेशन से 125 बनने वाला है, वो जल्दी आंसर निकाल के देता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। ये 2015 है, ये 2014 है।
This is when their revenue increased by 25% for all the 4 companies. नेक्स्ट केस लेने वाला हूं जब 50% से चेंज होगा, ठीक है। चलिए डेटा फिल करते हैं पहले तो यार। 15, 150, 125, 150, 125, 150 एंड 100। आई होप यही डेटा है। लेट मी क्रॉस चेक। यस, दिस इज द डेटा। यहां पे भी फिल कर देते हैं। Okay, now so we have to go back to 2014. So we will be using multiplying factor concept. So this is x and which is increased by 25% and it becomes 150. ये you can say 25% से increase मतलब 1/4 से increase, that is 5/4 हो जाना. You know this thing, right? x को अगर हम 25% से increase करते हैं, so this is 1/4. So this value will be 5/4x. Okay. So 5/4 is 150. So x will be 120. Same, ये हो जाएगा 100. Same 120 और this is 80. ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं 50% से इंक्रीज मतलब 3/2. So this will be 100. This will be 83.33. This is 100. This is 66.67. ठीक है। अब हमें चारों का पता चल चुका है कि अगर वो 50% से इंक्रीज होंगे तो क्या होंगी और 25% से इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, राइट। मुझे रेवेन्यू में चेंज करवाना है 125 एंड यू कैन सी 125 जो नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है, डेसिमल में तो नहीं है, और एक ही कंपनी होगा जिसका 50% से इंक्रीज होगा। सो अगर इनमें से कोई 50% वाली होती है, मतलब मान लीजिए Q और S अगर 50% से इंक्रीज होते हैं, Q होता है या S होता है, तो वहां पे Q या S में जो चेंज होगा वो डेसिमल में आएगा, पर डेसिमल में चेंज आ नहीं सकता। सो आई कैन से दैट कि वो Q और S तो नहीं होंगी जो 50% से चेंज हो रही होंगी, राइट। सो पहला केस में लेने वाला हूं P, कि अगर P 50% से चेंज होता है और 25% वाले को यहां लिख देंगे, ठीक है। तो P अगर 50% से चेंज होता है, दैट मीन्स कितना चेंज आ रहा है, देखो रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है 50 का, तो यहां ऐसा लिखता हूं P लिख देता हूं P, और जो रिमेनिंग है QRS वो यहां पे देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। ये देखिए 50 का चेंज है, ठीक है, यहां लिख देते हैं। चलो ये 25 का चेंज है या 30 का है या 20 का है या 30 का है, ठीक है, और यहां 50 का है, यहां भी 50 का है, ठीक है। तो अगर P 50% वाली ग्रोथ वाली कंपनी है तो इनका चेंज देखिए कितना रहा है, 50, 25, 75 प्लस 50, 125। यस, सेटिस्फाई हो रहा है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि B जो है वो 50% वाली कंपनी हो जाती है और QRS वाली 25% वाली। नेक्स्ट, क्या R वो कंपनी ऐसी हो सकती है जिसका 50% ग्रोथ हुआ है? यहां पे नोटिस कीजिए वैल्यू बिल्कुल सेम है और यहां पे भी नोटिस कीजिए वैल्यू सेम है। सो यस, R भी हो सकती है। सो वी आर गेटिंग टू पॉसिबिलिटीज कि जिसमें एक कंपनी की ग्रोथ 50% से और रिमेनिंग 3 कंपनीज की ग्रोथ 25% से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। In 2014 the revenues of P and R cannot be determined uniquely. Yes, Q और S का रेवेन्यू तो हम बता सकते हैं, P और R का नहीं बता सकते, बिकॉज दो केसेस P और R के वजह से बन रहे हैं, Q और S के वजह से नहीं बन रहे, ठीक है। तो ये वाली बात सही बोली है उसने, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें वो आंसर निकालना है जो सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम 2014 से 15 द इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ एटलीस्ट 2 कंपनीज वर द सेम। कोई भी 2 कंपनीज का सेम होना चाहिए जो रेवेन्यू में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं P में कितने का चेंज हो रहा है, 50 का, ओके। Q में कितना चेंज हुआ है, 25 का, ओके। R में कितना चेंज हुआ है, 30 का, और S में कितना चेंज हुआ है, 20 का। इट सेज कि 2 कंपनीज का, कम से कम 2 कंपनीज का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है दैट वाज सेम, बट सेम नहीं है। सो आई कैन से B इज द राइट आंसर।
बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। सो बी तो कभी करेक्ट नहीं होगा। आप देख लीजिए सबका जो रेवेन्यू चेंज है वो डिस्टिंक्ट था। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये सेट मेरे अकॉर्डिंग डुएबल सेट था, बड़ी आसानी से कोई भी बच्चा इस सेट को कर सकता था।